Very good morning to all of you. Students, you can see the poem on your screen, The Rum Tum Tugger. Today we will recite this poem. First of all, let's understand few word meanings. Grouse, a small fat bird. एक छोटा सा fat bird होता है जिसे बोलते हैं grouse. Bureau, an organization that collects or provides information. यहाँ ब्यूरो का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन. एक कबर्ड को बोला गया है, एक ड्रॉर को बोला गया है. टेबल का ड्रॉर होता है ना जिसमें सामान रखते हैं, ये मतलब है यहाँ पर इसका ब्यूरो का. डिसऑब्लाइजिंग मीन अनविलिंग टू हेल्प और डू व्हाट. डिसऑब्लाइजिंग मीन अनकोऑपरेशन, किसी से कोऑपरेट ना करना. अनविलिंग मतलब किसी की हेल्प करने से मना कर देना. अगर आपको कोई हेल्प करने के लिए बोले, आपने उसे मना कर दिया, मीन आप उसे डिसऑब्लाइज कर रहे हो, उसकी बात नहीं मान रहे हो. लाडर, लाडर मीन्स अ कबर्ड और स्मॉल रूम यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड. एक कबर्ड को बोलते हैं जहां पर सामान स्टोर किया जाता है, फूड स्टोर किया जाता है, खाने की चीजें स्टोर की जाती हैं. मडल, muddle means an untidy or confused state. मतलब सब सामान इधर उधर बिखरा देना, अनटाइडी कर देना प्लेस को, that is called muddle. First of all, look at warm-up box. Have you ever read or heard of mysterious creatures who could talk and sing and do things that seem unbelievable at first glance? किसी ऐसे आप एनिमल को, बर्ड को, किसी को ऐसा जानते हो, क्रिएचर कोई भी जो डिफरेंट बिहेव करता है, आप उसे फर्स्ट टाइम देखते हो तो आपको उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट लगता है. आपने उनमें से किन्हीं 3 के नाम लिखने हैं. कैन यू नेम एटलीस्ट 3 ऑफ देम? किन्हीं 3 क्रिएचर्स के नाम आपने यहाँ बॉक्स में लिखने हैं. सॉरी, फिलअप्स जो आपको दिए हुए हैं, ब्लैंक्स, वहां आपको लिखने हैं. ओके, ये आपकी अपनी चॉइस के होंगे नाम जो आपने क्रिएचर्स ऐसे देखे हैं. मे बी वो एनिमल्स हों, बर्ड्स हों. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिसाइट द होल पोएम, देन आई विल एक्सप्लेन यू line wise. Okay, the rum tum tugger is a curious cat. If you offer him pheasant, he would rather have grouse. If you put him in a house, he would much prefer a flat. If you put him in a flat, then he would rather have a house. If you set him on a mouse, then he only wants a rat. If you set him on a rat, then he would rather chase a mouse. Yes, the Rum Tum Tugger is a curious cat, and there isn't any call for me to shout it, for he will do as he do, and there's no doing anything about it. The Rum Tum Tugger is a terrible bore. When you let him in, then he wants to be out. He is always on the wrong side of every door. And as soon as he is at home, then he would like to get about. He likes to lie in the bureau drawer, but he makes such a fuss if he can't get out. Yes, the Rum Tum Tugger is a curious cat, and there isn't any use for you to doubt it, for he will do as he do, and there's no doing anything about it.
The rum-tum tugger is a curious beast. His disobliging ways are a matter of habit. And you offer him fish, then he always wants a feast. When there isn't any fish, then he won't eat rabbit. If you offer him cream, then he sniffs and sneers, for he only likes what he finds for himself. And the last paragraph, so you will catch him in it right up to the ears. If you put it away on the larder shelf, the rum-tum tugger is artful and knowing. The rum-tum tugger doesn't care for a cuddle, but he will leap on your lap in the middle of your sewing. For there's nothing he enjoys like a horrible muddle. Yes, the rum-tum tugger is a curious cat, and there isn't any need for me to spout it, for he will do as he do, and there's no doing anything about it. Yes, dear students, now I'll explain you this poem line-wise. The Rum-Tum Tugger is a curious cat. Students, this is a poem written by T.S. Eliot. T.S. Eliot इसके पोएट हैं. उन्होंने इस पोयम में एक कैट का कंपैरिजन किया है ह्यूमन नेचर से. इंसान का नेचर कैसा होता है, हम लोगों का नेचर कैसा होता है, उससे कंपैरिजन किया है. और कैट का नाम क्या है? रम टम टगर. The rum-tum tugger is a curious cat. Rum-tum tugger एक curious cat है. Curious होता है एक जो सब कुछ जानना चाहता हो, knowledge बढ़ाना चाहता हो. Pankaj, Nilesh, Levansh, what are you doing? Be attentive in the class. जो rum-tum tugger एक cat है, वो बहुत curious है. वो सब कुछ जानना चाहती है. If you offer him pheasant, he would rather have grouse. अगर आप उसे ऑफर करना, देना, पूछना, अगर आप उसे फिजेंट, एक बड़े बर्ड को बोलते हैं, फिजेंट एक बड़ा सा बर्ड होता है, फैट बर्ड. अगर आप उसे खाने के लिए वो फिजेंट दोगे कैट को, ही वुड रादर हैव ग्राउस, तो वो उस फिजेंट को नहीं लेगी, किसे प्रेफर करेगी? ग्राउस. ग्राउस होता है एक स्मॉल फैट बर्ड. मतलब अगर आप उसे बड़ा बर्ड दोगे खाने को, तो वो कौन सा बर्ड प्रेफर करेगी लेना? छोटे वाला. If you put him in a house, अगर तुम उसे एक बड़ा सा घर दोगे, he would much prefer a flat. तो वो क्या प्रेफर करेगी? एक फ्लैट. फ्लैट क्या होता है? जैसे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में बने होते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, इसमें छोटे छोटे फ्लैट्स जो बने हुए होते हैं. तो अगर आप उसे बड़े घर में रखोगे, तो वो क्या कहेगी कि मुझे तो एक छोटा सा घर चाहिए. ह्यूमन भी ऐसे ही होते हैं, इंसान भी. बड़ा है तो छोटा घर चाहिए, छोटा है तो बड़ा चाहिए. If you put him in a flat, और अगर तुम उसे फ्लैट में रखोगे, then he would rather have a house. तो वो क्या प्रेफर करेगी? कि उसे एक बड़ा घर चाहिए. If you set him on a mouse, then he only wants a rat. Mouse छोटे rat को, चूहिया को बोलते हैं. अगर तुम उसे खाने के लिए चूहिया दोगे, then he only wants a rat. तो उसे एक बड़ा सा rat चाहिए. If you set him on a rat, then he would rather chase a mouse. और अगर तुम उसे रैट दोगे, तो वो किसका पीछा करेगी? माउस का. Yes, the rum-tum tugger is a curious cat. जो rum-tum tugger है, वो बहुत curious है. And there isn't any call for me to shout it. और मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं उस पे चिल्लाऊं. For he will do as he do. क्योंकि उसने करना वही है जो वो करना चाहती है. लाइक ह्यूमन बींग्स, इंसान भी ऐसे ही होते हैं. उनका बिहेवियर जो उनके दिमाग में आ गया, उन्होंने करना वही है, कोई मर्जी उन्हें समझा ले. एंड देयर्स नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. और मैं इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता हूँ. स्टूडेंट्स, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम पैराग्राफ. लिसन केयरफुली, क्योंकि इस पूरी पोएम को कराने के बाद मैं आप लोगों से सुनने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन. ओके, सो बी अटेंटिव. द rum-tum tugger इज अ क्यूरियस कैट. जो rum-tum tugger है, एक क्यूरियस कैट है. क्यूरियस होता है जिसको हर चीज
के बारे में होता है कि मुझे ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। इफ यू ऑफर हिम फीसेंट, अगर आप उसे एक बड़ा सा बर्ड, फीसेंट एक बड़ा सा बर्ड ऑफर करते हो खाने के लिए, ही वुड रादर हैव ग्राउस, तो उसे छोटा वाला बर्ड चाहिए। इफ यू पुट हिम इन अ हाउस, अगर तुम उसे एक बड़े घर में रखते हो, ही वुड मच प्रेफर अ फ्लैट, तब उसे एक छोटा सा फ्लैट चाहिए रहने के लिए। इफ यू पुट हिम इन अ फ्लैट, अगर आप उसे फ्लैट में रखते हो तो उसे क्या चाहिए, ही वुड रादर हैव अ हाउस, तब उसे एक बड़ा घर चाहिए। मीन जो आप उसे ऑफर करोगे उसका वो ऑपोजिट करेगी। इफ यू सेट हिम ऑन अ माउस, अगर तुम उसे माउस एक चूहिया दोगे खाने को तो उसे फिर क्या चाहिए, देन ही ओनली वांट्स अ रैट, तब उसे रैट चाहिए। इफ यू सेट हिम ऑन अ रैट, अगर आप उसे एक रैट दे दोगे, देन ही वुड रादर चेज अ माउस, तब वो माउस को चेज करेगी, पीछा करेगी चूहिया का। यस, द रमटम टगर इज अ क्यूरियस कैट, रमटम टगर जो है वो एक क्यूरियस कैट है। एंड देयर इजंट एनी कॉल फॉर मी टू शाउट इट, और मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं उसके ऊपर चिल्लाऊं। फॉर ही विल डू एज ही डू, क्योंकि वो वही करे, ही मीन मेल कैट की बात हो रही है, क्योंकि उस कैट ने वही करना है जो उसके मन में होगा, जो वो करना चाहता है। एंड देयर्स नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, और मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। सेकंड पैराग्राफ, द रमटम टगर इज अ टेरिबल बोर, when you let him in, then he wants to be out. He always on the wrong side of every door. The rum-tum tugger is a terrible bore. Bore होना मतलब किसी चीज से आप जैसे खाली बैठे बैठे बोर हो जाते हो, मम्मा क्या करूं, मम्मा क्या करूं, तो ये जो रम टम टगर है ना कैट, ये भी बहुत जल्दी बोर हो जाता है। When you let him in, then he wants to be out. जब तुम उसे अपने घर के अंदर रखोगे तो उसका क्या मन करेगा कि बाहर जाना है। He will always on the wrong side of every door. मतलब वो डोर के हमेशा गलत साइड में होता है। अगर अंदर होता है तो उसका मन करता है बाहर जाए, और बाहर होता है तो उसका क्या मन करता है वो कि वो घर के अंदर आ जाए। एंड एज सून एज ही इज एट होम, और जब उसे घर ले आते हैं, देन ही वुड लाइक टू गेट अबाउट, फिर उसका दोबारा से मन करता है कि वो बाहर जाए। ऐसा ही आप लोगों के साथ भी होता है, जब आप बहुत देर से घर में बैठे होते हो ना तो आपका मन करता है बाहर जाए, और जब बाहर घूम फिर के आते हो, थक जाते हो, तब फिर से आपका मन करता है घर आओ। घर आके फिर से आप बोर होना शुरू हो जाते हो। सेम ह्यूमन नेचर से कंपैरिजन करके बताया गया है कि अगर घर में है ये रमटम टगर तो इसका बाहर जाने का मन करता है, और बाहर है तो इसका मन करता है कि ये घर में वापस आ जाए। He likes to lie in the bureau drawer. ये जो रमटम टगर कैट है, इसे ब्यूरो ड्रॉर, जो टेबल की ड्रॉर्स बनी होती है ना, उसमें बैठना इसे, उसमें लेटना इसे अच्छा लगता है। बट ही मेक्स सच अ फस इफ ही कांट गेट आउट, पर अगर इसे ये बाहर नहीं निकल सकती वहां से, थोड़ी देर तक ये कैट वहां से बाहर नहीं निकल सकता, तो फिर वहां पे फस मतलब सब कुछ होच पोच कर देना, सब कुछ बिखरा देना। तो ये परेशान होकर उस ड्रॉर में सब कुछ बिखरा देता है। Yes, the rum-tum tugger is a curious cat. Rum-tum tugger जो है वो बहुत curious है, and there isn't any use for you to doubt it. और कोई यूज नहीं है कि इस पे किसी चीज का डाउट किया जाए, शक किया जाए। For he will do as he do, क्योंकि इसने करना वही है जो इसका मन करेगा। And there's no doing anything about it, और हम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। Again, I am explaining the same paragraph. The rum-tum tugger is a terrible bore. जो rum-tum tugger है वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। ये जो कैट है, मेल कैट, when you let him in, जब आप इसे अंदर लेके आते हो घर के, then he wants to be out, तब इसे घर के बाहर जाना है। He is always on the wrong side of every door. वो हमेशा डोर, दरवाजे के गलत साइड में होता है। And as soon as he is at home, जैसे इसे घर लेके आओगे, then he would like to get about, और इसका फिर से मन करेगा कि इसे घर से
बाहर जाना है। He likes to lie in the bureau drawer. इसे टेबल के ड्रॉर में बैठना, वहां लेटना अच्छा लगता है। But he makes such a fuss if he can't get out. पर ये अगर ड्रॉर से बाहर नहीं निकल सकता तो वहां पर फस सब चीजें उथल पुथल कर देता है। Yes, the Rumtum Tugger is a curious cat and there isn't any use for you to doubt it. Yes, Rumtum Tugger एक curious cat है और उसके बारे में कोई भी डाउट करने का कोई यूज नहीं है, उस पर शक करने का कोई यूज नहीं है। फॉर ही विल डू एज ही डू, क्योंकि इसने वही करना है जो इसका मन करेगा। एंड देयर्स नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ, द रमटम टगर इज अ क्यूरियस बीस्ट। क्यूरियस बीस्ट, बीस्ट होता है एनिमल, जो रमटम टगर है वो एक क्यूरियस एनिमल है। His disobliging ways are a matter of habit. Disobliging, किसी की बात नहीं मानता ये जो कैट है, ये उसकी हैबिट है, उसकी आदत है कि कभी वो किसी की हेल्प नहीं करता, कभी किसी की बात नहीं मानता। उसका नेचर कैसा है? अनकोऑपरेटिव। ठीक है। इफ यू ऑफर हिम फिश, अगर तुम उसे फिश ऑफर करोगे, फिश दोगे, देन ही ऑलवेज वांट्स अ फीस्ट, तब उसे हमेशा क्या चाहिए होगा? फीस्ट मतलब गुड फूड, बहुत अच्छा खाना। व्हेन देयर इजंट एनी फिश, जब फिश नहीं होगी खाने को, देन ही वॉन्ट ईट रैबिट, तब वो रैबिट तक भी नहीं खाएगा। रैबिट एज कंपेयर टू फिश उसके लिए एक फीस्ट है, अच्छा खाना है। अगर आपके पास फिश है, आप उसे फिश ऑफर करोगे तो उसे फीस्ट चाहिए, बहुत अच्छा खाना चाहिए। लेकिन अगर फिश आपके पास नहीं है, आप उसे फिश नहीं दे रहे, तो फिर उसे रैबिट भी नहीं चाहिए। इफ यू ऑफर हिम क्रीम, अगर तुम उसे क्रीम ऑफर करोगे, देन ही स्निफ्स, स्निफ होता है सूंघना, तब वो उसे सूंघेगा, एंड स्नियर्स, और अजीब सी स्माइल पास करेगा। फॉर ही ओनली लाइक्स व्हाट ही फाइंड्स फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि उसे वही चीज पसंद है जो वो अपने आप अपने लिए फाइंड करता है, ढूंढता है। अगेन द सेम पैराग्राफ, द रमटम टगर इज अ क्यूरियस बीस्ट, जो रमटम टगर है वो एक क्यूरियस एनिमल है। हिज डिसऑब्लाइजिंग वेज आर अ मैटर ऑफ हैबिट, किसी की बात ना मानना उसकी ये आदत है। इफ यू ऑफर हिम फिश, अगर तुम उसे फिश दोगे खाने को, देन ही ऑलवेज वांट्स अ फिश, तब उसे बहुत अच्छा खाना चाहिए होगा, फिश नहीं चाहिए। व्हेन देयर इजंट एनी फिश, अगर फिश नहीं है, देन ही वॉन्ट ईट रैबिट, तब वो रैबिट तक भी नहीं लेगा। इफ यू ऑफर हिम क्रीम, अगर तुम उसे क्रीम ऑफर करोगे, देन ही स्निफ्स, तब वो उसे सूंघेगा, एंड स्नियर्स, और स्माइल पास करेगा। फॉर ही ओनली लाइक्स व्हाट ही फाइंड्स फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि उसे वही चीज पसंद है जो वो अपने आप ढूंढता है। सो यू विल कैच हिम इन इट राइट अप टू द ईयर, जब तुम उसे क्रीम ऑफर करते हो, वो नहीं खाता है, अजीब सी स्माइल पास करता है, तो तुम क्या करते हो? तंग होके उसे कान से खींच लोगे। इफ यू पुट इट अवे ऑन द लार्डर शेल्फ, लार्डर एक बड़ी सी कबर्ड जिसमें फूड स्टोर किया जाता है, खाने का सामान रखा जाता है। इफ यू पुट इट अवे ऑन द लार्डर शेल्फ, तब तुम उससे छुटकारा पाने के लिए थोड़ी देर के लिए अगर उसे लार्डर शेल्फ, बड़ी सी कबर्ड के ऊपर, शेल्फ पे उसके ऊपर बिठा दोगे, द रमटम टगर इज आर्टफुल एंड नोइंग, रमटम टगर बहुत आर्टफुल मतलब बहुत क्लेवर, चालाक है, एंड नोइंग, सब कुछ जानता है। द रमटम टगर डजंट केयर फॉर अ कडल, कडल होता है एक तरह से हग करना, किसी के क्लोज, वो कभी भी किसी को हग करना नहीं चाहता, किसी के क्लोज रहना नहीं चाहता, वो केयर नहीं करता इस बारे में। बट ही विल लीप ऑन योर लैप, लैप होता है गोद, लीप होता है जंप करना, इन द मिडल ऑफ योर स्यूइंग, अगर तुम मशीन पे काम कर रहे हो, स्यूइंग मतलब कुछ स्टिच कर रहे हो, तो तब वो क्या करेगा? कूद के तुम्हारी गोद में बैठ जाएगा, मतलब तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। For there's nothing he enjoys like a horrible muddle, क्योंकि ना उसे ऐसे तंग करने में ही, मडल मतलब किसी को परेशान करना, सारा सामान इधर उधर करना, इन सब चीजों में उसे मजा आता है। Yes, the rumtum tiger is a curious cat and there
isn't any need for me to spout it. Spout होता है किसी के बारे में बहुत ज्यादा बोलना, बक बक करना जिसे आप बोल सकते हो। और एंड देयर इजंट एनी नीड फॉर मी, और मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बोलूं। फॉर ही विल डू एज ही डू, क्योंकि उसने करना वही है जो उसका मन करेगा। एंड देयर इज नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, और हम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। अगेन द सेम पैराग्राफ। सो यू विल कैच हिम इन इट राइट अप टू द ईयर्स। जब आप उसे क्रीम ऑफर कर रहे हो और वो अजीब सी स्माइल आपको पास कर रहा है, तो आप तंग होके उसके कानों से पकड़ोगे। इफ यू पुट इट अवे ऑन द लार्डर शेल्फ, और उसे कहाँ बिठा दोगे? बड़ी सी कबर्ड की ऊपर। द रम टम टगर इज आर्टफुल एंड नोइंग। रम टम टगर बहुत क्लेवर है, सब कुछ जानता है, उसे पता है कैसे परेशान करना है। द रम टम टगर डजंट केयर फॉर अ कडल। वो ये केयर नहीं करता कि कोई उसे प्यार करे, उसे गले से लगाए, या वो किसी के क्लोज जाए। उसे ये चीजें बहुत पसंद नहीं है। बट ही विल लीप ऑन योर लैप इन द मिडल ऑफ योर स्यूइंग। लेकिन अगर आप मशीन पे कोई काम कर रहे हो, स्टिच कर रहे हो, तो वो कूद के आपके गोद में आ जाएगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। फॉर देयर इज नथिंग ही एंजॉयज लाइक अ हॉरिबल मर्डर, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा मजा इसी चीज में आता है कि वो किसी को परेशान करे। Yes, the Rum-Tum Tugger is a curious cat and there isn't any need for me to spout it. Rum-Tum Tugger एक curious cat है और मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलूं। For he will do as he do, क्योंकि उसने वही करना है जो उसका मन करेगा। And there is no doing anything about it, और हम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बहुत बार ह्यूमन बीइंग्स कुछ ऐसे होते हैं जो उनका नेचर हम लोग चाह कर भी बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ह्यूमन नेचर के साथ टीएस एलियट ने कैट को कंपेयर किया है। ठीक है, कैट का जो बिहेवियर बता के उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में बताया है। ओके, यस डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू अनम्यूट ऑल ऑफ यू। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स। ओके, एक्सक्यूज